message, and that's all I'm going to say about this. So I'm just checking if, okay, my first poet's not around. So I'm going to start up with somebody who is very, very prolific and not in the ways that she writes poetry per se, because poetry is something she got into off and on and then, began writing very, very recently. But this is somebody who's just absolutely magical because she has a beautiful smile. And while most people write poetry when their heart is heavy, most people, Sudipti Rastogi, aka Magical Sudipti, is of course the other way around. She's always been the other way around. And she began writing in 2000, but never really kept a record. Like most of us who, when writing, we look for anything and everything to, just use to write on. So that always happens with us. Now, she's working as a learning and development head in a global organization and is passionately in love with creating magical smiles around her through counseling, training. She has a book called ABCD of Affirmation based on law of attraction and several YouTube videos. She also does live programs for this, and she is in love with herself. Well, she firmly believes self-love is most important, and she believes herself to be her first child. So yeah, there's no doubt about that. So ladies and gentlemen, Sudipti Rastogi, aka Magical Sudipti. Thank you so much, Sangeeta. Thank you so much for this wonderful welcome. Good evening, everyone. So today, when I'm talking about love, so the very first question comes as, क्या होता है प्यार और कैसे ढूंढें उसको जो basically प्यार करता है? How will you find that divine blessing in your life? So here comes the beautiful lines which directly came from my heart. ये पोएट्री है, प्रोज है, ये आप खुद आइडेंटिफाई कीजिएगा क्योंकि मैं जो लिखती हूँ वो दिल से लिखती हूँ. It directly comes from my heart and I am just intending to convey my heart to your heart. That's it. So कैसे ढूंढूं वो कुदरत का करिश्मा जिसको प्यार कहते हैं? कैसे ढूंढूं वो कुदरत का करिश्मा जिसको प्यार कहते हैं? जो बिन बोले नजरों से दिल की गहराइयों में उतरे उसे मेरा दिलदार कहते हैं. तो क्योंकि सवाल ये है कि कैसे ढूंढूं वो कुदरत का करिश्मा जिसको प्यार कहते हैं, तो अब मेरा जवाब है, अगर वो दिखा दे तुमको खुद में अपनापन जो तुम देख ना सके, अगर वो देख ले तुम में उम्मीद की चमकती किरण जो तुम देख ना सके, अगर वो कर दे हर अंधेरे को फीका जो तुम कर ना सके, अगर उसके साथ भर से मिल जाए तुमको वो राह जिस पर तुम चल ना सके, रोक दे अगर वो समय को और जिंदगी गीत बन जाए, याद दिलाए वो पिछली जीत और हिम्मत अगर पांव डगमगा जाए, और कभी टूट जाओ तो जो दे कंधा और सिर को सहलाए, तो समझ लेना वो अपना मिल गया तुमको, नहीं रुकना बढ़ा कदम बढ़ा के थाम तुम लेना, समझ लेना वो कुदरत का करिश्मा मिल गया तुमको, समझ लेना वो कुदरत का करिश्मा मिल गया तुमको. और क्योंकि आई एम इन लव विद माई सेल्फ एंड आई एम इन लव विद यूनिवर्स एज वेल, तो हम सबसे ज्यादा we generally fall in love with and we are look forward for love from other people. But what I say is, when I love myself, so my inner child is basically universe directly. So when you try and seek love from the universe directly, you will keep getting love divinely till such time you are here on this planet Earth. So when you are connected with universe, तो universe आपको वो प्यार किस तरह देता है, हम universe के प्यार की बात करते हैं. प्यार एक खूबसूरत एहसास, चाहे कितनी ही मामूली हो जिंदगी, पर बना देता है उसको खास. प्यार एक खूबसूरत एहसास, बारिश की बूंदों को देख चढ़ती कढ़ाई हो, सिर्फ पापड़ ही तला हो या चाय और पकौड़ी भी बनाई हो, तुम समझ लेना मेरे प्यार का खूबसूरत एहसास. मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं हूं तुम्हारे पास प्यार एक खूबसूरत एहसास. काम का बोझ हो या ऑफिस की मीटिंग सर पर आई हो, रूम हीटर की गर्मी हो या सर्दी की धूप
जिंदगी में हल्का सा सुकून लेकर आई हो। तुम समझ लेना मेरे प्यार का एक खूबसूरत एहसास। मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। सैलरी की खबर हो या हुई थोड़ी सी कमाई हो, ढेर सारी खुशियां हो या आंखों से आंसू की धारा बहती आई हो, जब अगले दिन की सुबह रोशनी की किरण नई उम्मीद लेकर आई हो, तुम समझ लेना मेरे प्यार का खूबसूरत एहसास। मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। उठते गिरते तूफानों के बीच जब हवा का झोंका गालों को छुए, तब तुम समझ लेना मेरे प्यार का खूबसूरत एहसास। मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। रात के अंधेरे में, खामोशी के घेरे में, तारों की छांव में या चांदनी की बाहों में, तुम समझ लेना मेरे प्यार का खूबसूरत एहसास। मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर दिन जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे, आंधी तूफान भी आएगी, लेकिन अगर ऊपर वाले का साथ हो, उस यूनिवर्स का प्यार मेरे साथ हो, तो हर जो बिजली चमक रही है वो घर जलाने का नहीं, रोशनी देने का काम करेगी। और उसी बात पे मैं कह रही हूँ कि बादलों की गड़गड़ाहट से अगर तुम डर जाओ, आंधी के थपेड़ों से अगर तुम डगमगा जाओ, तो चमकती बिजली की रोशनी में समझ लेना तुम मेरे प्यार का एहसास। मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। आसमां में जैसे घटा का छाया अंधेरा हो, जीवन में चाहे परेशानियों ने तुझको घेरा हो, बारिश की हर बूंद में, घड़ी की हर गूंज में, मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। प्यार एक खूबसूरत एहसास। और ध्यान से सुनिएगा, गानों के हर सुर ताल में, 2021 के सुनहरे साल में, चाहे दोस्ती में या सामाजिक तौर तरीकों में दिखाती हुई चेहरे पे अनचाही या अनकही सी आती मुस्कान में, तुम समझ लेना मेरे प्यार का एहसास। मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। प्यार एक खूबसूरत एहसास। I just want to know if I have more time, so I just have one more poem. You have 2 minutes. Right. So, मेरी अगली पोएम का टाइटल है बस अब जान निकल जाए। वो उसकी अदा और वो उसके काम का इरादा, हो गए हम उस पर फिदा देखकर उसका वादा। न वो बोले कुछ हमसे, न कुछ हम ही बता पाए, पर जब वो नजरों से ओझल हुए तो लगा बस अब ये जान निकल जाए। उनके कदमों की जो आहट हो, सांसों में जोश भर जाए, नजर के सामने आते ही मीठी सी टकरार हो जाए, और मन में ये घबराहट हो कहीं ना प्यार हो जाए, लेकिन नजरों से वो ओझल हो तो लगे बस अब ये जान निकल जाए। उन छोटी छोटी सी टकरारों में जरा इकरार शामिल था, कहने को था कुछ भी नहीं, पर एक बहाना हर बार शामिल था, और मन ही मन ये घबराहट थी कहीं ना प्यार हो जाए, लेकिन नजरों से जब वो ओझल हो तो लगे बस अब ये जान निकल जाए। यूं ही एक बार उनको हमसे जरा सा काम आ गया, हम पर रहमत यूं बरसी कि दिल पर नहीं फोन पर उनका नाम आ गया। अब धड़कनों का थमना थोड़ा सा मुश्किल था, और मन ही मन ये घबराहट भी थी कि कहीं ना प्यार हो जाए, लेकिन दिल ये इतना पागल था, बोला अरे एक बार कॉल तो आए, क्योंकि नजरों से जब वो ओझल हूं तो लगे बस अब ये जान निकल जाए। यूं ही बहती हवा सा बातों का सिलसिला चल पड़ा, कुछ हम मुस्कुरा दिए और कुछ उनका दिल मचल पड़ा। अब तो प्यार भरे तराने उनके थे और सुकून भरे चेहरे पर मुस्कान हमारी थी। वो हमको हमारी खूबी दिखाते थे, और अब एक नई पहचान जमाने भर में हमारी थी, और अब एक नई पहचान इस जमाने भर में हमारी थी। और आज सुदीप्ति का ये पैगाम आप सबको है कि आए अब वो दिन कि तुम सबको खुद से इतना प्यार हो जाए कि जो देखेगा अब तुमको
वो खुद को रोक ना पाए और ये बोले कि नजरों से जब वो ओझल हूं, नजरों से जब वो ओझल हूं, बस अब ये जान निकल जाए. Thank you so much. Wow. Okay. All right, people. Comments before we move on. आज का तो मैडम आगाज ही इतना अच्छा हुआ है कि सुदीप्ति मैम ने इतनी बढ़िया तीनों पोइम सुनाई हैं, और मतलब आगाज इतना अच्छा है, और आज आपके पास 18-19 पोइट्स हैं, तो लग रहा है शाम बहुत अच्छी होने वाली है. Thank you so much. दीप्ति, अब तो ये सच में लग रहा है कहीं प्यार ना फिर से हो जाए. I'm glad. It's completely my pleasure. बस फिर हम कहेंगे कि बस अब ये जान निकल जाए. अब ये जान निकल जाए. Lovely, it was amazing as usual. You rocked it. Thank you so much. Sudipti, your poem is full of life, and the beauty of loving. Thank you. Really enjoyed listening to you. Thank you so much, Anita ma'am. Yeah, Sudipti, your poem was so beautiful. तुम्हारे expressions इतने खूबसूरत होते हैं, तुम्हारी poetry में जान डाल देते हैं, और फिर लगता है हमें देखकर कि बस अब जान ना निकल जाए. तुम्हारे लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी, जो मैंने तुम्हारी लाइफ देखी है अब तक, बचपन से लेके अब तक, और तुम्हें देखा है. तो हालांकि ये कॉपीड है, मेरा खुद का नहीं है. जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते. ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. Thank you so much, Aparna. Thank you. Thank you so much, Sudipti. What amazing start, and your smile is just, well, magical. So let's just keep it at that. Totally love the amount of energy, the positivity that comes across,